Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we are going to continue our chapter second of your political science book, Contemporary World Politics, and the name of the chapter is The End of Bipolarity. So, class, in our last class, what we have discussed about the Gorbachev and the disintegration. How Gorbachev, the last leader of the Soviet Union, related to the disintegration of the Russia or Soviet Union. Okay, so we will continue with this. I will taking this topic Gorbachev and disintegration once again. So just look at the screen properly. Gorbachev and the disintegration. Gorbachev, first of all, Michael Gorbachev, he was the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in the year 1985, sought to reform the system. Before understanding further, we should know about Mikhail Gorbachev. Who was Mikhail Gorbachev? So Mikhail Gorbachev, born in the year 1931, he was the last leader of the Soviet Union till from 1985 to 1991. This is the picture of Mikhail Gorbachev. He introduced various policies, economic and political reform policy, and the very famous one is Peres, um, Perestroika, which means restructuring, and Glasnost, which means openness. Okay, so Troika is restructuring economy. Okay, for restructuring economy, he introduced this policy of Perestroika, and Glasnost is for openness, to make the system more liberal. He introduced this policy of Glasnost. Okay, so he stopped the arms race with the US. So arms race, military race, जो न्यूक्लियर वेपन फाइट्स हो रही थी या फिर जो कोल्ड वॉर हो रहा था, तो he tried to stop the arms race with the US, United States. He withdrew Soviet troops from Afghanistan and Eastern Europe. जितने भी सोवियत ट्रूप्स थे, ठीक है, अफगानिस्तान में भी उन्होंने इन्वेजन कर लिया था. हमने लास्ट टॉपिक में इस चीज को देखा था. इन अफगानिस्तान को इन्होंने क्या कर लिया था? अफगानिस्तान को भी इन्होंने इन्वेड कर लिया था. ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज को भी इन्वेड कर लिया था. तो इस जो मिकेल गॉर्बाचेव थे ना, उन्होंने क्या किया था? इस चीज को उन्होंने रिमूव कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था. ओके, सो ही हेल्प इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. 1990 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था. 1989 में बर्लिन वॉल जो है डिसमैनेज हो गई थी, वहां से हट गई थी. सो ही हेल्प इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बर्लिन वॉल को रिमूव करने में, और डिसइंटीग्रेशन जो हुआ था आपका उसमें, और यूनिफिकेशन जो हुआ था जर्मनी का, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी का, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की थी. एंडेड द कोल्ड वॉर. He ended the Cold War. Okay, you can say he was one of the most important person in ending the Cold War between the Soviet Union and the US, Soviet Union and the America. And he also blamed for some of the economists or political analysts say that he was the one who disintegrate the Soviet Union. He was the main person, and his policies disintegrated the Soviet Union. Okay, so now the topic. So Michael Gorbachev कौन थे? जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफ द सोवियत यूनियन in 1985 and sought to reform the system. He thought कि we should reform this system. हमें इस सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने देख लिया था कि रिफॉर्म्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज पीपल आर नॉट हैप्पी.
we will study further why people started reforming and why he came up with these kinds of reforms. We will answer all these questions furtherly. I will answer you all these questions. Okay. So reforms, why reforms? Reforms were necessary to keep the USSR abreast of the information and technological revolution. रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी. क्यों जरूरत थी? कि जो भी यूएसएसआर की इंफॉर्मेशन है या फिर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है वो इंफॉर्मेशन यूएस तक ना जाए. ठीक है. जो भी गलत इंफॉर्मेशन जा रही थी उन इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ रहा था, साइड बाय साइड उनको फेस करना पड़ रहा था ना. तो साइड बाय साइड जो भी इंफॉर्मेशन है वेस्ट की या यूएसएसआर की, उन वो इंफॉर्मेशन रखने के लिए रिफॉर्म्स करना बहुत ज्यादा जरूरी था. अब लोगों को अपने ट्रस्ट में लाना बहुत ज्यादा जरूरी था. और अगर लोगों को आपको अपने अंदर अपने ट्रस्ट में लाना है तो यू हैव टू keep them liberal, give them the freedom. Okay, so that's why he came up with these reforms, perestroika and glasnost. Both of these reforms were very important. Okay, after that Soviet bloc started to protest against their own government unlike in the past. So first of all, the Soviet bloc, the East European countries, okay, all the members of the all the countries of the East European countries who was supporting the Soviet Union, Russia, okay, so those were known as the Soviet bloc and or Second World also. So he started to they started to protest against their ओन गवर्नमेंट, सोवियत कंट्रोल. हमने पढ़ा था कि रशिया का जो है इम्पोर्टेंट रोल था, रशिया जो था डोमिनेटिंग था अदर यूएसएसआर की और दूसरी रशिया के अलावा जो भी 14 कंट्रीज थी उसमें रशिया जो था बहुत डोमिनेटिंग था. तो बहुत सारी जो सोवियत ब्लॉक्स थी, सोवियत मेंबर्स कंट्रीज थी, वो प्रोटेस्ट करने लग गई अपने गवर्नमेंट के लिए. क्योंकि रशिया क्या कर रहा था, अपने डोमिनेंस पे दूसरे कंट्रीज को डोमिनेट कर रहा था, अपने अंडर रख रहा था. सो सोवियत ब्लॉक्स और जो अदर कंट्रीज थी वो क्या करने लग गई, वो अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गई थी. अनलाइक इन द पास्ट. व्हाई? बिकॉज जब द सोवियत यूनियन अंडर गोर्बाचेव did not intervene when the disturbance occurred and the communist regimes collapsed one after another. ठीक है. गोर्बाचेव के अंडर जब गवर्नमेंट जब रही तो गोर्बाचेव ने कभी भी कोई भी किसी भी टाइप की डिस्टरबेंस आई हो ईस्टर्न कंट्रीज में जो सोवियत ब्लॉक में, उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं किया. और अगर जब इंटरफेयर नहीं कर रहे थे तो वो उससे क्या हो रहा था, उससे ये था कि लोग क्या है प्रोटेस्ट कर पा रहे थे, उनको डर नहीं था, एक काइंड का आप बोल सकते हो कि फियर नहीं था. ओके. रिफॉर्म्स अपोज्ड बाय लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी आल्सो. अब देखिए सोवियत ब्लॉक, ईस्टर्न कंट्रीज तो अपनी ही गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट कर रही थी. ठीक है. बट ये जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, ठीक है, जो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल पॉलिसीज आई थी, ठीक है, इससे क्या हो रहा था, ये जो डेवलपमेंट हो रही थी ये यूएसएसआर में बहुत ज्यादा क्राइसिस लेके आ रही थी. और ये जो क्राइसिस हैं बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, इसका गोर्बाचेव की जो पॉलिसी थी, उन्होंने बहुत ज्यादा इनिशिएट किया था डिसइंटीग्रेशन को. तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे, उन्होंने इन रिफॉर्म्स को अपोज किया. ठीक है. और अपोज करने के कारण क्या हुआ, जस्ट लुक एट दिस. a coup took place in 1991. A coup took place in 1991. coup एक आप बोल सकते हो कि रिफॉर्मर को बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो जो ऑपोजिट ठीक है. यस. इलीगली जब कोई पावर को सीज कर लेता है, ठीक है, इलीगली जब पावर को कोई सीज कर लेता है उसको आप बोल सकते हो एक coup बोल सकते हो. तो एक coup जो है it took place in 1991
एंड व्हाई? बिकॉज दिस कोप ऑलरेडी एक कोप जो है वो बन तो गया था, और उस टाइम तक जो है देखिए 1985 में ये पॉलिसीज, 1985 में गोर्बाचेव के आने के बाद जो है पॉलिसीज आने लग गई थी, और तब तक 1991 में आते आते जो वहां के लीडर्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक आप बोल सकते हो कि उनको फ्रीडम टेस्ट करने के लिए, दे टेस्टेड फ्रीडम, कि उन्हें पता था कि फ्रीडम होना क्या होता है। वो ओल्ड स्टाइल जो सोवियत यूनियन जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी जो कम्युनिज्म और सोशलिस्ट आइडियाज के साथ उन्हें रूल कर रहे थे, अब लोग वैसे रूल अपने आप को लीड करवाना नहीं चाहते थे। ठीक है, सो जो ये कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स थे उन्होंने क्या किया था, एक coup को इनकरेज किया था, एक होप लेके आए थे। बट पीपल टेस्टेड फ्रीडम, दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स और हार्डलाइनर्स, उनके अगेंस्ट उन्होंने बोला। एंड उसी टाइम पे रशिया में क्या हुआ था, रशिया में इलेक्शंस हुए थे, और 1991 में आप बोल सकते हो दिसंबर 1991 में फाइनली आफ्टर बोरिस येल्सिन कौन होंगे? बोरिस येल्सिन बेटा जो फर्स्ट आपके, इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं पहले। सो he was Boris Yeltsin. He was the first elected president of Russia. इन्होंने 1991 से 1999 तक जो है प्रेसिडेंटशिप एंजॉय की थी। He rose to power in the Communist Party and was made the mayor of Moscow by Gorbachev. देखिए ये रशियन रिपब्लिक के लीडर जो ये प्रेसिडेंट बनने से पहले ये कम्युनिस्ट पार्टी के ये पावरफुल बने कैसे? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पर्सन पहले एकदम से डायरेक्टली आ जाएगा और उसके बाद उनको पावर दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं से उनको स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में ही पहले एंट्री ली थी और वहां पे उनको क्या है, पावर मिली। जो गोर्बाचेव है, मिखाइल गोर्बाचेव, जो उस टाइम पे सोवियत यूनियन के लीडर थे, उन्होंने क्या किया था, मॉस्को का मेयर बनाया था इनको बोरिस येल्सिन ने। बट he later joined the critics of Gorbachev and left the Communist Party. बाद में उन्होंने क्या कर दिया, अपोज किया गोर्बाचेव को और क्रिटिसाइज किया और फाइनली ही लेफ्ट दैट कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, he led the protest against Soviet regime in 1991. अब 1991 में एक कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स ने क्या किया था, एक कोप को इंट्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था, ये जो सोवियत रिजाइम थी, लोगों के साथ मिल के उन्हें उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में, सोवियत रिजाइम के अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया 1991 में। एंड ही प्लेड अ की रोल इन डिसॉल्विंग द सोवियत यूनियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने सोवियत यूनियन को डिसॉल्व करने में। So, and he also, various economists and political analysts blamed him for the hardship suffered by Russians in their transition from communism to capitalism. अब 1991 में यूएसएसआर जो था वो क्या हो चुका था, डिसइंटीग्रेट हो चुका था। बट एकदम से अगर आपको मैं बोलूंगी कि आपको आपका बिहेवियर या फिर आप जिस चीज में ढल चुके हो ऑलरेडी, आप जिस चीज में हो उससे आपको बोल दूंगी बिल्कुल चेंज होना है, तो उस चेंज होने में आपको टाइम लगता है। तो पॉलिटिकल एनालिस्ट इन्हें ब्लेम करते हैं कि अभी तक जो 1991 तक क्या हो रहा था, कम्युनिज्म था, सोशलिज्म की आइडियोलॉजीज थी, अब एकदम से कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करना। अब कैपिटलिज्म बिल्कुल, पहले क्या मिल रहा था लोगों को, पहले कहीं ना कहीं लोगों को एजुकेशन, हेल्थ, इनमें क्या है, सब्सिडीज मिल रही थी। बट अब कैपिटलिज्म, फ्री ओपन मार्केट आ चुका था। अब तो अब जिसके पास पैसा है वो क्या है, या फिर आइडियाज है, वो पैसा बना सकते थे। अब उनको क्या है, फ्रीडम मिल चुकी थी। ठीक है, तो उनको बोला जाता है
जो रशियंस थे उनको कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में जो ट्रांजिट होना था, चेंज होना था, उस चेंज होने में बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी. ओके, सो where we were, yes. So now Boris Yeltsin के बारे में हमने जाना. So he emerged as a national hero in opposing the coup. ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की, उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, इसके अगेंस्ट, इस coup के अगेंस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी है इनके अगेंस्ट में उन्होंने बहुत ज्यादा बोला. ठीक है, प्रोटेस्ट किया, लोगों के साथ में वो खड़े रहे और लोगों के साथ उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. नाउ पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स. अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, बोरिस येल्सिन हीरो तो बन ही चुके थे. अब जो रशियन रिपब्लिक एक आप बोल सकते हो पार्टी बनी, रशियन रिपब्लिक, जहां पे जो बोरिस येल्सिन है उन्होंने रशियन रिपब्लिक में क्या किया, उन्होंने एक पॉपुलर इलेक्शन हुआ, उन्होंने जो कंट्रोल था सोवियत यूनियन का, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था, वो अपने अंडर ले लिया था. ठीक है, पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स एंड especially in the more Europeanized part of the Soviet Union, which saw themselves as sovereign states. अब जो रिपब्लिक्स थे, सोवियत यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज आ रही थी. ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिपब्लिक्स थे, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थे. वो अब बोरिस येल्सिन तो प्रेसिडेंट बन गए. अब बहुत सारे रिपब्लिक कंट्रीज जो थी वो क्या है, अपने आप को सॉवरिन स्टेट, एज अ सॉवरिन स्टेट मानने लग गई थी. ठीक है, एंड द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation. बट कुछ ऐसी कंट्रीज उस टाइम पे थी जो क्या है, डिसइंटीग्रेट नहीं हुई थी. ठीक है, वो फिर भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी कुछ जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की थी, बट फिर वो किसके साथ रहना चाह रही थी, वो सोवियत फेडरेशन के साथ में ही रहना चाह रही थी. So finally, in 1991, December 1991, under the leadership of Boris Yeltsin, Russia, Ukraine, Belarus declared that the Soviet Union was disbanded. So December 1991 was the time जब आप बोल सकते हो USSR जो है लीगली डिसइंटीग्रेट हो गई थी उन्होंने. सो जो रशिया, यूक्रेन और बेलारूस उस टाइम पे इम्पोर्टेंट जो है आप बोल सकते हो यूरोपियन स्टेट्स थे, यूरोपियन इकोनॉमी थी. तो उन्होंने उस टाइम पे बोल दिया, बोरिस येल्सिन उनको क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उन्होंने बोल दिया कि अब सोवियत यूनियन जो है डिसबैंडेड हो चुकी है, अब सोवियत यूनियन पावर में नहीं रहेगी, हम सोवियत यूनियन के कोई भी डिमांड को नहीं मानेंगे. ओके, सो ब्रेकअप बोल सकते हो, ब्रेक हो चुकी थी सोवियत यूनियन, क्योंकि जो देखिए रशिया, यूक्रेन, बेलारूस ये 3 इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज थी वो डिवाइड हो गई थी. और भी दूसरी कंट्रीज भी थी जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी, वो भी उस टाइम पे क्या है, अब प्रोटेस्ट तो कर ही रही थी. तो फाइनली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो सोवियत यूनियन है वो डिसबैंड हो गया है, ब्रेक हो चुका है. एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैंड. और फाइनली जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, आप बोल सकते हो द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, और the one party of the USSR, that was the Bolshevik Communist Party, वो फाइनली दिसंबर 1991 में बैन हो चुकी. ओके, सो move further. Now, capitalism and democracy were adopted as the basis for the post-Soviet Republic. After 1991, अब बोरिस येल्सिन आ चुके थे. अब इसके बाद कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया था. कैपिटलिज्म, it means the open market system, and democracy, as you all know, giving freedom to the people, more access to the people. Okay, so government based
on the government according to the people or government based on the people. So the declaration on the disintegration of the USSR and the formation of the Commonwealth of Independent States came as a surprise to other republics. Now, just look at this. What is this Commonwealth of Independent States? So, just look at this map of the world. जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये जो आप एकदम ब्लू कलर का जो देख रहे हो, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडियन स्टेट्स. ये सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन चुके थे. जो आप लाइट ब्लू, ये ब्लू में देख रहे हो, ये मेंबर स्टेट्स थे. जो स्काई ब्लू बोल सकते हो आप, ये जो एकदम से ये वाला ब्लू कलर है, ये जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स थे. जो डार्क ब्लू में देख रहे हो, जस्ट लुक एट दिस. जस्ट अ मिनट. ओके, तो ये वाले पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स थे आपके. ये जो डार्क ब्लू में देख रहे हो, ये फॉर्मर मेंबर स्टेट्स थे, बट अब उन्होंने क्या है, साथ नहीं दे रहे हैं. जो आप ग्रीन से देख रहे हो, वो आप बोल सकते हो एक्स सोवियत नॉन मेंबर्स. ये वाली जो कंट्रीज थी, एक्स सोवियत नॉन मेंबर्स हैं. ब्लू वाली अगेन डेमोक्रेसीज है, क्योंकि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया गया था. ठीक है. तो ये आपकी जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. ठीक है. इनकी ये कंट्रीज हैं. एक ये आप बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का. जो ये डिक्लेरेशन था डिसइंटीग्रेशन की, यूएसएसआर अब डिसइंटीग्रेट हो गया है, ब्रेक हो चुका है. और जो कॉमनवेल्थ हमने यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होते ही हमने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के हमने क्या है, एक आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है. कुछ मेंबर स्टेट्स थे, कुछ पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स थे. तो ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए, सेंट्रल एशियंस के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था. ठीक है. So, and the exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CSR. और अब क्या है, अब उनके अंदर भी टेंशन क्रिएट हो गई थी कि इन्होंने तो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया है. ठीक है. और तो अब उनके अंदर भी एक क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो कि एक एक्सक्लूजन वाली फीलिंग आ रही थी. अपने आप को ऐसा लग रहा था उन्हें कि हमें बाहर निकाल दिया गया है, कि हमें यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है. तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही, या फिर आप बोल सकते हो वो सॉल्व कर दी. कैसे सॉल्व की, कि उनको भी फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया गया था CIS का. ठीक है. फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया गया था. ठीक है. So now Russia was now accepted as the successor state of the Soviet Union. ठीक है. कि अब सोवियत यूनियन क्या है, सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट हो गया है, और रशिया को क्या बोल दिया गया था, एक जो अब लीडिंग या फिर इम्पोर्टेंट कंट्री मान दी गई थी, सक्सेसर स्टेट मान लिया गया था. It inherited the Soviet seat in the UN Security of Council. Now, what is this UN Security of Council? It is one of the 6 principal organs of the United Nations and charged ensuring international peace and security. ठीक है. मेनली जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, इनका मेन पर्पस और मेन वर्क क्या है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी. इनका ये मेन पर्पस है. तो जो सोवियत सीट थी, अब डिसइंटीग्रेट हो गई थी यूएसएसआर, तो अब कुछ जो पावर्स है, कुछ चीजें जो है यूएन के अंडर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को दे दी गई थी. इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, when we give someone like our responsibility, और हम बोलते हैं ना कि अब राजा की जो राज गद्दी होगी इनकी होगी, या फिर हम किसी को देते हैं, हम एयर बनाते हैं, तो दैट इज नोन एज इनहेरिटेड. तो जो सोवियत सीट का जो मेन पावर्स थी, या फिर आप बोल सकते हो कि जो चीजें फेस कर रहे थे, जस्ट यस, अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को दे दी गई थी. रशिया एक्सेप्टेड Russia was now accepted as the
successor state, and Russia accepted all the international treaties and commitments of the Soviet Union. ठीक है, अब रशिया ने जो भी सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट होने के बाद बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि कुछ चीजें हैं जो अभी तक हो रही है वो ना हो, ठीक है, जो सोवियत के अंडर हुए, जो लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रही थी, तो रशिया ने क्या किया था, जितने भी इंटरनेशनल ट्रिटीज थे, कमिटमेंट्स थे, पीसफुल ट्रिटीज थे, सिक्योरिटी ट्रिटीज थे, उन सबको एक्सेप्ट किया. इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस and carried out some nuclear disarmament measures with the US. Now अब आप क्वेश्चन पूछोगे मैम, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि रशिया was now accepted as the successor state of the Soviet Union and why, रशिया को ही क्यों बनाया, और भी तो दूसरे कंट्रीज थे उनको भी बना सकते थे. तो बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया का जो लैंड है वो बहुत ज्यादा वास्ट लैंड है, एंड रशिया पहले से ही पावरफुल रहा है. तो जो एक न्यूक्लियर स्टेट बनाया गया था, ठीक है, तो रशिया को ही एक आफ्टर पोस्ट सोवियत स्पेस जितनी भी स्पेस टेक्नोलॉजीज थी वो रशिया में थी. न्यूक्लियर स्टेट जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं या जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स को उन्होंने स्टार्ट किया बनाना, या जो भी उससे रिलेटेड जो भी था, जहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे टेस्ट हो रहा है, सारी चीजें कहाँ हो रही थी, रशिया में ही हो रही थी. ओके, सो द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस डेड एंड बरिड. और फाइनली जो है, जो ओल्ड सोवियत यूनियन था, जो कम्युनिस्ट और सोशलिज्म के आइडल्स पे चल रहा था, ठीक है, और जो जिसके लीडर्स जो थे बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी, फाइनली वो क्या हो चुकी थी, डिसइंटीग्रेट हो गई थी. ओके, सो now your next topic is why did the Soviet Union disintegrated. So there are two main reasons कि क्वेश्चन अराइज होता है कि सोवियत यूनियन इतना पावरफुल था, एकदम से वो कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया. ठीक है, सोवियत यूनियन के अंदर जो कम्युनिज्म था वो एकदम से एंड कैसे हो गया, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं. तो उसका आंसर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही आंसर है, international weakness of Soviet political and economic institutions failed to meet the aspiration of the people. लोगों की जो डिजायर्स थी, लोग जो बनना चाहते थे, करना चाहते थे, जो डिमांड कर रहे थे, जो लोगों की डिजायर्स थी, सोवियत यूनियन या जो भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे सोवियत के अंदर, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे. अब यूएसएसआर में इतनी सारी कंट्रीज थी और रशिया क्या कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी, रशिया डोमिनेटिंग वन थी. तो यहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, अब डिमांड स्टार्ट कर दी थी. तो एक इंटरनल वीकनेस है. अब किसी कंट्री की अगर वहां के सिटीजन्स अगर खुश नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी. सो इंटरनल वीकनेस क्या थी ये. So why did the system became so weak? The Soviet economy used much of its resources. ठीक है, सोवियत इकोनॉमी ने मोस्टली सिटीजन्स के ऊपर जितना पैसा कि उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ में हमें ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, तो उसके अलावा वो क्या कर रहे थे, उसके अलावा वो वहां के रिसोर्सेज में जो है सोवियत इकोनॉमी वो पैसा लगा रही थी. ओके, इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल. ठीक है, कि न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल बनाने में, मेंटेन करने में वो रिसोर्स लगा रही थी. ना व्हाट इज दिस आर्सेनल? आर्सेनल मींस आप बोल सकते हो कि ऐसी प्लेस जहाँ पे आर्म्स या मिलिट्री वेपन्स को बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, उस प्लेस को हम मिलिट्री आर्सेनल बोलते हैं. तो रिसोर्स कहाँ लगा रही थी, न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल को मेंटेन करने में सोवियत इकोनॉमी अपना रिसोर्स लगा रही थी. सेकेंडली, द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप. अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि जो दो सुपर पावर्स थी, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर जो था, किस चीज को लेके बहुत सारी चीजों को लेके चल रहा था. दोनों अपनी पावर्स को सुपीरियर बता रहे थे. तो सुपीरियर कैसे बता रहे थे, टेक्नोलॉजीज को लेके, और ट्रांसपोर्टेशन को लेके, कम्युनिकेशन सिस्टम को लेके. ठीक है,
तो जो डेवलपमेंट हो रही थी ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज में, तो सैटेलाइट स्टेट्स बना रहे थे, and within the Soviet system, the 5 Central Asian republics in particular, okay, जो मेन जो थी 5 Central Asian Republic कंट्रीज थी, उनके अंडर सैटेलाइट सिस्टम्स को डेवलप कर रहे थे। अब सैटेलाइट सिस्टम डेवलप करना ऐसा तो नहीं है कि एक रोड को कंस्ट्रक्ट करवाना है, पूरा एक सिस्टम मेंटेन करना है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उस सैटेलाइट डेवलपमेंट में लगते हैं, तो यहाँ पे उनका रिसोर्स जा रहा था। ओके, सो यस पीयूष, आई नो यू हैव डाउट, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज, एक मैसेज ड्रॉप कर दो, जो भी आपका डाउट होगा आई विल टेक इट नेक्स्ट डे। ओके, एज आई so this led to a huge economic burden that the system could not cope with। बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन था। अब इकोनॉमी में रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, ठीक है, कभी ना कभी तो एग्जॉस्ट होंगे, तो इससे इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट में इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा था और उससे कोप नहीं कर पा रही थी। तो जो अब इस न्यूक्लियर वेपन्स और मिलिट्री आर्म्स को मेंटेन करने के लिए सारा पैसा जो है बन पा रहा था, तो वो क्या कर रहे थे कि सिटीजन्स का जो पैसा, सिटीजन्स के लिए जो मनी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, या फिर उनको जो सब्सिडीज दी जा रही थी, कहीं ना कहीं उससे उस चीज को लिया जा रहा था। Ordinary citizens became more knowledgeable about the economy of the West। ठीक है, अब जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे वो भी क्या है, अवेयर होने लग गए थे। पहले की तरह नहीं था कि जो गवर्नमेंट ने बोल दिया हो गया। अब कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो चुका था, लोगों को वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज रहने लगे। लोग नॉलेज रख रहे थे कि क्या हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो कितना डेवलप कर पा रही है, कितनी इकोनॉमिकली कितनी एडवांस है वेस्टर्न कंट्रीज, वहां के सिटीजन्स को जो वेस्टर्न कंट्रीज है कितना खुश रख पा रही है। तो ये जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे, दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम्स ऑफ द वेस्ट, कि हमारा सिस्टम और वेस्ट का सिस्टम को कंपेयर कर रहे थे। तो उन्हें लग रहा था वेस्ट का जो सिस्टम है, जो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा क्या है, अच्छा है, वहां के लोगों को वेजेस भी बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही है, वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड लाइफ जी पा रहे हैं, ठीक है। तो अब लोगों के अंदर ये फीलिंग आने लग गई थी, जो कैपिटलिज्म, वेस्टर्न कैपिटलिज्म सिस्टम है, दैट इज फार फार बेटर देन कम्युनिज्म। So the reality of its political backwardness came as a political and psychological shock। लोगों को बहुत ज्यादा शॉक भी लग रहा था, किस लिए, कि इनका जो कम्युनिस्ट सिस्टम है वो बहुत ही बैकवर्ड है, बहुत स्लो है, तो हमें कैपिटलिज्म को ही फॉलो करना चाहिए। अब लोगों के अंदर ये फीलिंग डेवलप हो चुकी थी। अब लोग अवेयर होने लग गए थे, उनको नॉलेज थी, तो अब लोग ही उनके अगेंस्ट में, जो है कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में, अब उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया था। दे स्टार्टेड रिफॉर्मिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे तो पहले इनडायरेक्टली कर रहे थे, थ्रू मीडिया, नॉट थ्रू मीडिया, थ्रू प्लेस, थ्रू जोक्स और कार्टून्स के थ्रू वो अपना जो भी डिससेटिस्फेक्शन था वो शो कर रहे थे, राइट। So class, next question ki economic stagnation. Now what is this economic stagnation? Stagnation means beta something which is motionless, ठीक है, इकोनॉमी इंक्रीज नहीं हो रही थी, बढ़ नहीं रही थी कि इकोनॉमी में कि पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा स्टेगनेट हो गई थी, मतलब कि आप बोल सकते हो कि इनएक्टिव हो चुकी थी इकोनॉमी। So it led to severe consumer shortages. And how it lead to the severe consumer shortages? It lead to the severe consumer shortages as the Communist Party was not accountable to the people. The ordinary people were alienated or isolated by
स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत स्लो था, करप्शन बहुत ज्यादा था, द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट इट्स मिस्टेक, या सिस्टम में अगर कोई मिस्टेक भी करी है तो सिस्टम उससे अपनी मिस्टेक्स को सही नहीं कर रही थी, बार बार करेक्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, बार बार वही मिस्टेक्स दोहरा रही थी। और जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा ओपन नहीं थी, ओपन अलाउ नहीं कर रही थी कि हम बहुत ज्यादा ओपन हो, ठीक है। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन अ वास्ट लैंड, कि अब रशिया के पास ज्यादा पावर थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज था इकोनॉमिक स्टेग्नेशन का। पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन्ड मोर प्रिविलेजेस, अब पार्टी ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे थे कंपेयर टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, एंड people did not identify with the system and with the rulers, and the government increasingly lost popular backing, ठीक है। और अब लोग इस सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है, रूलर्स से सेटिस्फाई नहीं थे। So class, this is all about today. Now in our next class, we will further talk about the Gorbachev reforms and how his reforms were not so popular and not liked by the people, not gained much popularity. Why? Okay, so we will talk about it in our next class.